Yes, I'm audible to all of you. Section A and Section F. Section A is combined now in this lecture today. So Section A and Section F both. I'm audible to all of you. Okay, Section A. Let me know anyone, Mukul or Ayush, that memory is being discussed with you or not in your class. Update me through a chat message. Okay, just started. Okay. So this slide was, मैं आपको use let me know through a audio input. मैंने allow कर दिया. हाँ. Yes, sir. This slide was done. This slide was done and previously before this control unit सब कुछ cover up हो गया है. So before that, I was in section C. Before that, I couldn't tell you the exact thing. Other can anyone let me know section A, hardwired and microprogram unit and control unit execution of computing section. So all those things have been completed or not? Anyone in section A, Aditi, Mukul? Okay. Okay, so we will start the memory. Section F. So as I have discussed few things in section F also, but section F you have to see things again. We slightly have to repeat things because section A have joined, and I think the memory part they have to start with this. I think only pipelining was done. Ayush Saxena is saying. Okay, तो आयुष ऐसा है, मैं पाइपलाइनिंग तक तो हो गया मान लीजिए, तो मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा क्या मैम से क्या हो गया था. सो विल स्टार्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टार्ट दिस मेमोरी क्योंकि कंबाइन चलेगा ए और एफ इस लेक्चर में, और अगर कोई पार्ट रह गया है सेक्शन ए का तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेके उससे आपको कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है, बट फ्रॉम दिस क्लास में टू थिंग्स विल बी देयर. एक तो जो कंबाइन लेक्चर चल रहा है, शेड्यूल लेक्चर जो है, उसमें तो हम इसी तरीके से मूव करेंगे. And if any part is left, I will just discuss with you people and update you कि कैसे उसको cover up करना है. ठीक है? Definitely by taking some extra separate lectures to section F. फिलहाल we'll talk about the memory unit and section F. Be patient to listen all those things again. Already हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि combined lecture है तो हमें इसको थोड़ा सा repeat करना पड़ेगा. So quickly I'm repeating and then coming to the content that we are having. Now, what is this memory system? So we talk about a memory. So memory means different levels of memory we are using in computer system. So we talk about the cache memory, we talk about a main memory, we talk about a secondary memory. So as you can see in this figure, broadly I can say we talk about a cache memory over here, the fastest one in this figure, the main memory over here, which is basically a RAM we talk about, and then this is basically a secondary memory that we are having. So what we are having, three levels of memory we are having. Cache is the fastest one, main, then the slowest, then the cache, and the slowest among all these three is the secondary. So each of the memories are they having their own importance. Another 2 points are IOP, input output processor, and one is CPU. So we know it very well, all the processing will be done by the CPU, and IOP does the task of input output processing. So instead of disturbing the CPU for each kind of IOP, that is input output task, what the CPU does, it creates a IOP, input output processor, and इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि input output interactions है वो IOP के थ्रू होगा. Definitely IOP is a part of a CPU. IOP is a part of a CPU which does the task of interacting with the input output devices only. फायदा क्या है कि सीपीयू अपने एग्जीक्यूट करता रहेगा और जो आईओ इंटरेक्शंस हैं, इनपुट आउटपुट के इंटरेक्शंस है, वो आईओपी के थ्रू परफॉर्म हो जाएंगे. फिलहाल वी फोकस ऑन द मेमोरी पार्ट. एज यू कैन सी द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट more level of memories we are having. So we start with the register.
the smallest. Then we're going to have a cache memory, then main memory, magnetic disk, and magnetic tape. So you will see different levels of memory we are having: registers, cache, main, magnetic disk, and magnetic tape, and they represents each different levels of memory. So you will see among all, the fastest one is the registers memory. Register is very small. If you have studied the control unit, आपने हमने पढ़ा है बहुत सारे registers होते हैं, MAR, memory address register, memory data register, accumulator, program counter, general purpose registers R0, R1, R2. So different point of time you have studied the registers. The registers are very, very small and they are very, very fast. And then after that, we'll see the cache memory. Somehow comparable. The size speed is comparable to the register, but the size is somewhat more as compared to the register. हालांकि cache का size बहुत ज़्यादा नहीं होता है. Few KB and like that. Few KB or few MB that you are having. So register, but having size of 16-bit, 32-bit or 64-bit. और इनका साइज वो तो बहुत ही छोटा होगा. उसके बाद कैश का साइज few KB and few MB. Then we're going to have main memory. अगर हम basically RAM की बात करें, so we're going to have 8 GB of RAM in it, or 16 GB of RAM, and like that. That we are having. So you will see. So you will see different levels of memory that we are having. So register is the smallest one. Cache is size having more than a register. Then the RAM. Then next is a magnetic disk that we call as a hard disk that we are having. And then the next level, we are going to have the magnetic tape, which is used for the secondary storage. So you will see if we draw an arrow like this, so we can say the size will be increasing from this side to this. Size will be increasing. And another way you will see, if I draw an arrow like this, the speed will be increasing. So you will see the tape will be having a slowest speed, very slow as compared to the register, which is the fastest one. So you will see we can say in this order, we can represent memory in this order by having a point of a speed and a size. Okay? Register is the smallest one, but having the highest speed. However, tape is having the largest size, largest one, but having a very small speed. But each of the these memory element in the hierarchy are having their own importance. ऐसा नहीं है कि register ही बहुत useful है, or register is the only thing which is useful. The tape is having their own importance because we need to have a backup storage. So we do not need any kind of speed over there. So only need is to have some sort of backup. Backup चाहिए होगा, so that the amount should be large. There should be a voluminous amount of data we require. So in that case, you will see अगर backup storage की बात करें तो register का कोई use नहीं है. वहाँ पर tape और disk ही हमें useful आएंगे क्योंकि large amount of data को store कर सकते हैं. Similarly, अगर processing की बात करें, so the CPU makes you the register. वहाँ पर volume की जरूरत नहीं है. We need a small amount of data, but data should be run very fast. It should have a accessibility in terms of the CPU speed. So you will see each of the memory element in this hierarchy will having their own importance as I've given in terms of size and speed. Size is increasing from top to bottom, however the speed increases from bottom to top. Okay, as I've told you, register is the smallest one, and cache memory, L1, L2, different kind of cache we are having. L1 cache, L2 cache, L3 cache. L3 is a shared one among different cores of a CPU, and L1, L2 cache are coming with the CPU chip. L1 is few KB and L2 few MB, like that, very small, 3 to 4 MB and like that. Okay, this is what a different kind of memory that we are having. Next is the concept of static and dynamic RAM that I'm skipping right now because later lectures will see certain designs where we'll discuss the RAM configuration. I'm skipping this point and I'm directly coming to this main memory. Now, this is a numerical question that we are having, and also I guess there's some certain conceptual point we are having that you have to see. So we have to see, we are going to have a main memory like this.
So as you know, memory consists of two kind of memories. One is a RAM and one is ROM. तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि हमारे पास रैम और रोम के कार्ड दिए हुए हैं. पहले हमें इन कॉन्फ़िगरेशंस को अंडरस्टैंड करना है कि ये चिप के कॉन्फ़िगरेशंस क्या है. व्हाट इज अ रैम एंड व्हाट इज अ रोम. एंड लेटर ऑन यू हैव टू सी कि द क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू जनरेट अ मेमोरी एड्रेस फॉर ईच ऑफ द रैम एंड रोम लोकेशंस. यानी एक कंप्यूटर में रैम कार्ड लगे हुए हैं, रोम कार्ड लगे हुए हैं और कंबाइंड मेमोरी लोकेशंस बन गई रैम और रोम की. तो कैसे उनमें कंप्यूटर एड्रेस असाइन करता है, कैसे उनको एड्रेस जनरेट कर रहा है, कैसे ईच लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है इन ए कंप्यूटर सिस्टम हैविंग अ मेमोरी ऑफ रैम एंड रोम. ठीक है. सो जस्ट बिफोर कमिंग टू दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस चिप आर. सो यू विल सी टिपिकली वी आर हैविंग रैम एंड रोम चिप्स. सो द अबव पार्ट इज, यू विल सी इट इज अ रैम चिप. अब देखिए रैम चिप का साइज क्या लिखा है, इट इज 128x8. 128x8 का मतलब क्या है? It is basically a RAM card having 128 locations and each location is having 8 bit of data. 128 locations है और हर एक location 8 bit के data को represent कर रहा है. We can totality we can say it is a 128x8 RAM और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 128 bytes. एक ही चीज है. So I can also write it is 128 bytes. ठीक है. 128 बाइट्स की रैम हो गई या 128x8 रैम हो गया, 128 लोकेशंस हो गया. अब देखिए जो भी डेटा हम रीड करेंगे कितने बिट का डेटा निकलेगा. देखिए मेमोरीज बाइट एड्रेसेबल. जब भी एक लोकेशन को रीड करेंगे 8 बिट का डेटा आउट होगा. सो यू सी 8 बिट डेटा विल बी आउट इन द बस. ठीक है. सो अबव पार्ट यू विल सी इट इज अ रैम कार्ड. याद रखना है क्वेश्चन में यूज करेंगे. रैम का साइज है 128x8 और 128 बाइट्स. 128x8 का मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं 128 मेमोरी लोकेशंस है रैम के अंदर, where each location corresponds to 8 बिट ऑफ डेटा. यानी एक लोकेशन रीड करेंगे ऑटोमेटिकली 8 बिट का डेटा रीड होगा. दैट इज व्हाट द साइज ऑफ मेमोरी सेज. नाउ कम टू द लोअर पार्ट. रोम में देखिए क्या है, रोम 512x12 यानी कि 512 लोकेशंस है रोम में, where each location corresponds to 8 bit, or I can say the ROM is having a size of 512 bytes. ठीक है. तो हमारे पास रैम हो गया 128 बाइट्स का, तो हमारे पास जो रोम हो गया दैट इज 512 बाइट्स. दैट इज व्हाट द बेसिकली द चिप मींस. आगे there are certain control available over here that talks about. now उसके अलावा अब कैसे रैम और रोम चिप सेलेक्ट होगा उसके कुछ कॉन्सेप्ट है. विल सी. नाउ चिप सेलेक्ट का मतलब हाउ टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर चिप. उसके लिए क्या है, द वैल्यू शुड बी 1 over here and should be 0 over here. 10 means what? The chip select input of CS1 should be 1 and CS2 bar should be 0. देखिए CS2 bar इसको बोलते हैं एक्टिव लो, एक्टिव हाई CS1, और इसको एक्टिव लो यानी लो इनपुट देंगे तब एक्टिव होगा. बाय डिफॉल्ट जब भी हम इंटरनली 1 देते हैं तो एक्टिव होता है. अब देखिए 10 कैसे काम करेगा. 1 दिया तो देखिए ये तो सीधे 1 ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. या 0 देते क्या, ये CS2 बार है. CS2 बार का मतलब 0 कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली 1 बन जाएगा. तो इंटरनली विल सी वी आर पासिंग 1 and 1 इंटरनली, बट आउटसाइड यू हैव टू पास 1 0. यानी एक चिप को एक्टिवेट करने के लिए हमें 1 0 पास करना पड़ेगा. वी हैव टू पास अ वैल्यू 1 0 टू एक्टिवेट अ पर्टिकुलर चिप. ठीक है. आगे रैम है तो रैम कैन बी द वैल्यू कैन बी रीड और वैल्यू कैन बी राइट. सो रीड करना है तो रीड एक्टिवेट करेंगे, डेटा रैम से रीड करना है, और रैम में राइट करना है तो राइट को एक्टिवेट करेंगे. लास्ट 7 बिट एड्रेस AD7. 7 बिट क्यों? क्योंकि हमारे पास लोकेशंस कितनी है 128 बाइट्स. नाउ फॉर 128 what we can write 2 to the power 7. It means we need 7 bit of address to represent, to identify, to point out each location of a RAM. 2 to the power 7 is 127. तो 7 बिट का एड्रेस पास करना पड़ेगा ताकि हम किस लोकेशन को रीड करना है. इसीलिए we will see AD7 that is address bit 7. तो ये 7 बिट का एड्रेस पास करेगा, तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि किस रैम लोकेशन की बात है. रैम लोकेशन से तो हमें बताना पड़ेगा किस रैम लोकेशन की बात कर रहे हैं.
that we can do with the help of this 7-bit address. Now see the lower chip. The lower chip is having 512 cross 8. क्रॉस 8 का मतलब जब भी एक लोकेशन को रीड करेंगे 8 बिट का डेटा आउट होगा, पहली बात। और देखिए यहाँ एड्रेस का 87 बिकॉज 512 इज रिटन एज 2 to the power 9, 2 to the power 9 is 512. इट मींस रोम में मुझे 9 बिट का एड्रेस चाहिए होगा एक लोकेशन को रीड करने के लिए, सो इट इज अ 9 बिट एड्रेस। और चिप सेलेक्ट देखिए हमेशा इसमें भी 1 और 0 ही है। आगे कोई रीड एंड राइट बटन नहीं है। कैन एनीवन लेट मी नो इन ग्रुप स्पेशली सेक्शन ए और एनीवन सेक्शन ए एंड एफ, क्यों रोम में रीड और राइट का बटन नहीं है? इट इज देयर इन रैम बट इट इज नॉट देयर इन वाई? रीड ही होगा सर इसमें। यस, जब भी हम रोम को रीड करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, इट मींस ओनली वी हैव टू रीड द डेटा। रोम इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड until we deliberately change it or replace the ROM card or by another technique we are using it. Sir, हेलो, यस सर, ये चिप सेलेक्ट क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? चिप सेलेक्ट का मतलब क्या है कि हमें पार्टिकुलर रैम और रोम चिप को सेलेक्ट करना। भाई होता क्या है कि जब भी हम सिस्टम में मेमोरी कंबाइन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल को समझने के लिए, मेरे पास कंप्यूटर में 4 GB की रैम है, केवल रैम का एग्जांपल लेते हैं, 4 GB की रैम है और मेरे पास रैम का जो कार्ड है 1 GB का है। इसका मतलब मैं 4 रैम का कार्ड लगाऊंगा, रैम 1, रैम 2, रैम 3, रैम 4, वेयर द साइज ऑफ ईच रैम इज 1 GB और टोटल रैम में साइज कितना हो गया कंप्यूटर में? 4 GB का हो गया। अब कंप्यूटर जब यूज करेगा तो उसको क्या पता लगेगा? ब्रॉडली 4 GB की रैम लोकेशंस है, लेकिन इंटरनली हमें पता है 4 GB की लोकेशंस कैसे मिल रही है? 1 GB प्लस 1 GB प्लस 1 GB प्लस 1 GB। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोई कंप्यूटर एड्रेस लोकेशन पास करेगा तो वो लोकेशन 4 GB के अंदर होंगी एब्स्ट्रैक्ट व्यू में। इंटरनली वो किसी न किसी रैम को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, रैम 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। अब किसी एक रैम चिप को एक्टिवेट करने के लिए चिप सेलेक्ट को यूज करते हैं। चिप सेलेक्ट इनपुट्स 1 and 2 जो गिवन है, चाहे रैम में चाहे रोम में, इट विल बी देयर टू एक्टिवेट अ पार्टिकुलर चिप। कहने का मतलब क्या? कोई लोकेशन एड्रेस पास किया जो रैम 1 का है, मान लीजिए सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया और वो लोकेशन रैम 1 का था, ठीक है? तो रैम 1 के चिप को एक्टिवेट करेंगे ताकि वहां से उसको हम डेटा को रीड कर सके। या लोकेशन मान लीजिए रैम 2 का है तो रैम 2 को एक्टिवेट करेंगे, बिकॉज द लोकेशन मे बी टू अ पर्टिकुलर चिप ओनली। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 4 GB लोकेशंस हो गए, लेकिन अल्टीमेटली 4 GB लोकेशन बन कैसे रही है? 4 रैम लगा रखी है जहां हर रैम का साइज 1 GB का है। तो जो लोकेशन पास किया सीपीयू ने, हो सकता है रैम 1 का हो या 2 का हो या 3 का हो या 4 का हो, तो पर्टिकुलर रैम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ चिप सेलेक्ट। पर्टिकुलर रैम को एक्टिवेट करने के लिए ये चिप सेलेक्ट है। रैम मतलब रैम और रोम दोनों की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रैम और रोम चिप को एक्टिवेट करने के लिए चिप सेलेक्ट की बात कर रहे हैं। सर जैसे सर अगर मतलब 3rd नंबर की अगर रैम को सेलेक्ट करना है तो 1-1 हो जाएगा सर? नहीं 1-1 नहीं, वो 1-0 से ही होगा और उसका एक कॉन्सेप्ट है, द फिगर इज देयर, दैट विल डिस्कस दैट फिगर। एक चिप को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल तो 1-0 ही है। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि यू मे हैव क्वेश्चन इन योर माइंड, जैसे तुमने पूछा कि रैम 1 2 3 4 है। अब सर रैम 1 2 3 4 में चारों के लिए 1-0 से एक्टिवेट होने हैं, तो कब हम 1-0 रैम 1 का करेंगे या 2 का करेंगे? तो उसके लिए क्या, जो एड्रेस आता है उसके बेस पे हम एक डिकोडर वहां पर लगाते हैं एंड दैट डिकोडर विल स्पेसिफाई द वैल्यू। तो चिप सेलेक्ट के लिए तो 1-0 ही वैल्यू होगा, वो तो कोई मतलब दैट इज फिक्स फॉर ऑल। किसी भी रैम को या रोम कार्ड को एक्टिवेट करना है तो चिप सेलेक्ट में 1-0 ही पास करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, जब रैम 1 की लोकेशन होगी तो रैम 1 में 1-0 पास करेंगे, रैम 2 की लोकेशन होगी तो रैम 2 में 1-0 पास करेंगे एंड सो ऑन, and that will be done with the help of the decoder. Are you sure? Question? Okay. We'll see. We'll went across to the example. There you will see. क्योंकि इसके बाद एक फिगर है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद there you will see how this logic will run. लेकिन one point, the end point should be clear that to select a particular chip, that we have to pass 1 and 0. 1-0 में पास करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर चिप को एक्टिवेट करने के लिए, चाहे रैम की बात करें चाहे रोम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? Now just see
before moving ahead. This is what the chip select, read, write एंड 7 बिट एड्रेस, ये रैम की बात कर लिया और 8 बिट का डेटा आउट हो गया और सेम प्रॉम्प्ट के लिए हो गया। अब एक टेबल रह गई। टेबल क्या है देखिए, ये बता रहा है, अब जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जो पार्ट मैंने बताया कि 10 पे चिप एक्टिवेट हो रही है, ये रैम के लिए बात कर रहा है बेसिकली। अब देखिए रैम के लिए क्या आ रहा है, चिप सेलेक्ट की वैल्यू क्या दी है, पहले 0 और 0 दिया। देखिए इनहिबिट है, हाई इंपीडेंस। हाई इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, देयर इज नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, so we'll say the bus will be in the high impedance mode. There is no logical connection between the input and the output, and this will call it as high impedance state. जैसा मैंने बताया ये एक्टिवेट कब होगा, 10 पे एक्टिवेट होना चाहिए। तो 00 पे देखिए हाई इंपीडेंस है, 01 पे देखिए ये भी हाई इंपीडेंस है, सेकेंड पार्ट हाई इंपीडेंस। अब तीसरा देखिए, इन तीनों का भी मैं छोड़ देता हूँ, 1110 को छोड़ देता हूँ, डिस्कस करते हैं। लास्ट देखिए क्या 1 और 1 दिया, तभी देखिए क्या ये हाई इंपीडेंस है। यानी कि 00 पे अगर हम चिप सेलेक्ट पे 00 दें, 01 दें, ये 11 दें, तो these all are high impedance। हाई इंपीडेंस का मतलब क्या, नो लॉजिकल कनेक्शन, कोई एक्टिविटी होनी भी नहीं चाहिए, नो एक्टिविटी इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब नेक्स्ट हमारा इनपुट रह गया जो वैलिड इनपुट है चिप सेलेक्ट का। हमने क्या बोला था, यहाँ पर 1 देना, यहाँ पर 0। अब 10 पे देखते हैं 10 पे क्या हो रहा है। देखिए 10 पे 3 स्टेट यहाँ गिवन है टेबल में, यू विल सी 10 दिया 10। अब देखिए रीड भी 0 और राइट भी 0। जैसे हमने बताया कि रीड राइट में कोई भाई अगर रैम की बात कर रहे हैं तो 10 चिप सेलेक्ट हो गया, चिप सेलेक्ट कर लिया। अब या तो रीड ऑपरेशन होगा या फिर राइट ऑपरेशन होगा, दोनों ही 0 हो गए। इट मींस इट इज गोइंग टू बी अगेन द हाई इंपीडेंस मोड। नेक्स्ट देखिए यहाँ वैलिड स्टेट है 1 0, चिप सेलेक्ट बिल्कुल ठीक है। रीड क्या है 0 है और राइट क्या है, राइट 1 कर दिया। इस बार देखिए राइट मोड 1 है, यानी कि चिप में क्या हो जाएगा, राइट परफॉर्म हो जाएगा, रैम में राइट परफॉर्म हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट 1 0, रीड 1 कर दिया, राइट की डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब अगर रीड 1 है तो राइट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी, इट मींस इन दिस केस द रीड विल बी परफॉर्म। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं ड्रॉ करूं, इफ यू सी बाय येलो, these two are the active and correct states, यानी इन दोनों के बेस पे रीड और राइट परफॉर्म होगा। You will see, as I've told you, 1 0 need to pass in a chip select input, and then either of read or write need to be activated. रीड राइट दोनों साथ में एक्टिवेट होंगे, तो इन दैट केस अगर रीड 1 हो गया तो राइट को वो इग्नोर कर देगा, डोंट केयर हो जाएगा, रीड परफॉर्म कर देगा। ठीक है, सो इन दिस केस it will do a functionality like this. तो 1 0 पास करेंगे चिप को सेलेक्ट करने के लिए, और अगर रैम की बात कर रहे हैं तो रीड एंड राइट को हम एक्टिवेट कर देंगे। रीड विल बी 1, रीड विल बी परफॉर्म, और राइट विल बी 1, देन राइट विल बी परफॉर्म। So this is a basic concept of the chip generation of a particular RAM and ROM, chip configuration of a particular RAM and ROM. The next part that we are having, that we have to see, is basically to combine these main memory RAM and ROM chips to generate a particular configuration. Now let me know till this point things are clear. Just reply through a chat message. Reply through a chat message, all of you, especially section A. Clear है sir. Section A, reply quickly. Okay, now next we are extending this point. अब इसी को हमें complete करना है इस part को. So as you can see what we are having. See now. Just a minute. Okay, so this was the point we are having. Now next we have to move to the part. Now this memory address map. Now depending upon the discussion that we are having, the previous slide था, उसके बेस पे
we have to come up with a memory address map, and you have to see how this memory address map will work. Now just see what we are having. हमने डिस्कस किया कि we are going to have a RAM having a size of 128. RAM की जो हमने बात किया, that is having a size of 128 bytes. और जो ROM की हमने बात किया, it is having a size of 512 bytes. ठीक है ना? अब ये हमारे पास रैम कार्ड है और रोम कार्ड का साइज है, एक रैम का साइज और एक रोम का साइज. क्या करना है? एग्जांपल सेज address a space assignment to each memory chip. Now example says if in a computer we are going to have we require 512 bytes of RAM and 512 bytes of ROM. तो कैसे हर एक मतलब एड्रेसेस कैसे असाइन होंगे, क्या हेक्स में या उसके एड्रेसेस होंगे that can be assigned to each and every memory location in RAM and ROM. कैसे करेंगे अब देखिए, how to solve it. First of all we have to see this is basically a RAM size 128 bytes, and this is basically ROM size 512 bytes. And कितनी सिस्टम में रिक्वायर्ड कौन सी रैम है? रैम 512 रिक्वायर्ड है और ROM 512 रिक्वायर्ड है. पहले मुझे बताइए, कैन एनीवन लेट मी नो इन अ ग्रुप हाउ मेनी रैम कार्ड वी रिक्वायर? अगर मेरे पास 128 बाइट्स की रैम है और 512 बाइट्स का ROM है, and we need 512 bytes of RAM in system and 512 bytes of ROM in system. कितनी रैम कार्ड यूज करनी पड़ेंगी और कितनी रोम कार्ड यूज करनी पड़ेंगी? रिप्लाई थ्रू अ चैट मैसेज. लेट मी नो कितनी रैम कार्ड चाहिए होंगी. हाउ मेनी रैम कार्ड्स भी रिक्वायर, हाउ मेनी रोम कार्ड्स भी रिक्वायर. भाई सीधी सी बात है, 128 बाइट का साइज, एक रैम का साइज 128 बाइट्स का है. कितनी रैम चाहिए? 512. इट मींस वी नीड टू पुट अ 4 रैम कार्ड्स. ऐसी 128 बाइट्स की 4 रैम कार्ड लगाएंगे तो बन जाएगा 512 बाइट्स का रैम. आगे कितने रोम कार्ड चाहिए होंगे? 512 बाइट्स का रोम कार्ड है और 512 बाइट्स के रोम चाहिए. नाउ लेट मी नो कितने रोम कार्ड चाहिए होंगे? Yes, only one ROM card is required. So you will see, first step, it's clear. Now you will see here now in the table, we need 4 RAMs. RAM 1, जिसका नाम कर दिया हमने RAM 1, RAM 2, RAM 3 and RAM 4, and 1 ROM card, और जिसको हमने केवल ROM छोड़ दिया. You will see RAM 1, 2, 3, 4 are being used. अब ये इस एग्जाम्पल की हम बात करें. So this table is not fixed. Mind it, depending upon the RAM and ROM chip given in the last slide and the memory we require in this question, ये टेबल क्रिएट होके आ रही है. ठीक है ना? तो 4 रैम कार्ड चाहिए, तो RAM 1, RAM 2, RAM 3, RAM 4 and 1 ROM card is required. आगे, this is first part. Now आगे we have to go to the address bus and we have to see how the addresses can be generated. So हम address तक complete करेंगे and I think tomorrow we'll continue with this lecture. Now we'll see next part. Address bus पे आइए. अब address bus पे कितने बिट्स हैं? मैं ड्राइंग रिमूव कर रहा हूं. एड्रेस बिट्स में हमारे पास 16 बिट का एड्रेस है. 1 to 10 इज शोन. यहाँ पर 16 बिट का एड्रेस है. क्यों 16 बिट कैसे पता लगा? देखिए एड्रेस जो जनरेट हुए हैं वो हेक्स में गिवन है. अब देखिए रैम 1 की केवल फोकस करिए. रैम 1 में देखिए हेक्स एड्रेस कितने बिट का है? 4 हेक्स बिट है. यानी एक हेक्स बिट 4 बिट को रिप्रेजेंट करता, तो 4 + 4 8 + 12 + 16 यानी 16 बिट का एड्रेस जनरेट किया गया है. लेकिन चूंकि यूज 10 बिट हुआ था, 10 बिट यहाँ रिप्रेजेंट किया गया और 11 to 16 ऑल जीरोस हैं. ये याद रखना आपको, 11 to 16 ऑल जीरोस हैं. अभी आपको हेक्स पे फोकस नहीं करना है. अभी आपको मैं बता रहा हूँ एड्रेस बस कितने बिट की. एड्रेस बस कितने बिट की? 16 बिट की है. अब चूंकि 1 से लेकर 10 तक यूज किया गया तो उनकी वैल्यूज गिवन है. 11 to 16 यूज नहीं है, ऑल जीरोस है. एक बात आगे. अब देखिए 2 वैल्यूज गिवन है. रैम 1 में देखो या 2, 3, 4 में कुछ क्रॉस लगे हुए, कुछ इंटीजर 0, 1 लिखे हुए. कैसे लिखे गए? अब देखिए द साइज ऑफ ईच ऑफ द रैम. एक रैम का साइज कितना था? 128. एक रैम का साइज 128 का था और 128 मींस वी रिक्वायर 2 to the power 7. So we require 7 bit of address to address each location in RAM. 7 बिट का एड्रेस चाहिए एक रैम में लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो अब देखो
रैम 1 में 1 से लेके 7 तक क्रॉस हो गया, रैम 2 में भी देखो 1 से लेके 7 तक क्रॉस हो गया, रैम 3, रैम 4, चारों में 1 से लेके 7 तक क्रॉस हो गया। और रोम का साइज कितना था देखिए, रोम का साइज 512, एक रोम कार्ड का साइज 512 which is basically equivalent to the power 9, तो 9 बिट का एड्रेस चाहिए, you will see 1 से लेके 9 तक, एक रोम में 1 से लेके 9 तक हो गया, इसको हमने डोंट कैरी कर दिया, क्रॉस कर दिया। क्रॉस कैसे लगाया मैंने बताया आपको, जो एक रैम का साइज है और उस रैम के साइज को कितने बिट का एड्रेस चाहिए, 7 बिट का रैम है तो 1 से लेके 7 तक क्रॉस है, ऑन ऑल 4 रैम्स 1 2 3 एंड 4, और रोम 512 टू द पावर 9, तो 9 बिट से हमने क्रॉस कर दिया। आगे, अब आगे भी अब किल रैम की बात करते हैं। अब चूंकि 4 रैम है तब भी सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा रैम का, मान लीजिए तो रैम को हम एक रैम के अंदर जाएंगे तो 1 से लेके 7 तक क्रॉस हो गया। आगे अब कौन से रैम की बात कर रहा है, रैम 1 की 2 की 3 की 4 की, उसके लिए 8th एंड 9th बिट विल बी यूज्ड। अभी इसको कंप्लीट करके मैं रिकॉल करूंगा ताकि थोड़ा क्लैरिटी आपको हो रहा है। अब देखिए 4 रैम है, मतलब मान लीजिए मैं कहता हूं रैम की लोकेशन सीपी ने जनरेट किया, तो क्वेश्चन है कौन सी रैम की लोकेशन जनरेट किया, हो सकता है 1 की हो सकता है 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो। तो चूंकि 4 रैम की लोकेशंस है, 4 रैम है, सो टू एड्रेस ईच ऑफ द रैम अगेन द कांसेप्ट इज सेम, 2 टू द पावर n 2 स्क्वायर, यानी 2 बिट का एड्रेस चाहिए होगा ये पता करने के लिए किस रैम में जाना है, और वो 2 बिट एड्रेस कौन से, 8 और 9, यानी अगर 8 और 9 बिट 00 है तो रैम 1 की बात कर रहे हैं, 8 और 9 बिट 01 है तो रैम 2 की बात कर रहे हैं, 8 9 बिट 10 है तो रैम 3 की बात कर रहे हैं, और 8 और 9 बिट 1 है तो रैम 4 की बात कर रहे हैं। आगे तक मैं कंबाइन करूं तो क्या हुआ, मान लीजिए मैंने एड्रेस जनरेट किया सीपीयू ने 9 बिट का एड्रेस, ऑल जीरोस 000, अब देखिए इसको आप ऐसे समझो, आप मान लो 8 9 बिट 00 थे और 1 से लेके 7 तक 1 2 3 ये भी सारे 0 हो गए। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, 8 9 बिट 0 का मतलब क्या है, रैम 1 की बात कर रहे हैं और रैम 1 की लोकेशन 0 की बात कर रहे हैं। और फाइनली देखिए 10 बिट क्या कर रहा है, 10 बिट देखिए सभी रैम के लिए वैल्यू 0 है और रोम के लिए वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है, सीपीयू क्या करेगा, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, सीपीयू 10 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। अब सीपीयू 10 बिट का एड्रेस जनरेट कर, रैम मेमोरी के अंदर क्या रैम कार्ड भी है और रोम कार्ड भी है, यानी 10th बिट ये बताएगा कि लोकेशन रैम का है कि रोम का है। अगर 10th बिट 0 है तो रैम की बात कर रहा है, 10th बिट 1 है तो रोम की बात कर रहा है। आगे चले, अगर मान 10th बिट 1 है तो हम अगले 9 बिट से उसकी लोकेशन पता कर लें, किस रोम लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर 10th बिट 0 है तो रैम की बात कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन ये बताना पड़ेगा कि हम रैम की बात तो कर रहे हैं, but we are talking about RAM 1 2 3 and 4. So in that case, you have to see bit number 8 and 9 RAM के लिए केस में 8 9 से क्या पता लगेगा, 0 0 है तो RAM 1, 0 1 है तो RAM 2, 1 0 है तो RAM 3 और 1 1 है तो RAM 4। आगे मान लीजिए 0 0 है तो RAM 1 की बात कर रहे हैं, लास्ट 7 बिट से हम RAM 1 की लोकेशन को पता कर लेंगे। मान लीजिए 0 1 है, RAM 2 की बात करें तो लास्ट 7 बिट से अगेन RAM की लोकेशन को पता कर लेंगे। So you will see this is a memory address map that we are having. So by using this 10 bit address, 10 bit का यूज करके हम ultimately इस कॉन्सेप्ट में, मतलब 512 bytes of RAM और 512 bytes of ROM with a basic memory chip, हम एक एड्रेस असाइन कर सकते हैं। 11 to 16 का देखिए यहाँ पर यूज करना नहीं पड़ा, असाइन करना पड़ेगा, will be all zeros। लेकिन 1 से लेकर 10 बिट तक हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में रैम और रोम एक रैम के अंदर एक लोकेशन को पता करने के लिए कॉन्सेप्ट हमने डिजाइन कर लिया। और नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली to assign the hex address to this one. That we'll do in the next lecture. Now let me know any point of clarification at this point. It's clear to all. Let me know it's clear to all. Just reply. See hex, Ravi's hex part is there. अब लास्ट पार्ट क्या रह गया, हमें इस जो हमने 10 लिखा इसको केवल हेक्स में रिप्रेजेंट करना है।
So tomorrow we'll just quickly start with this. We'll come to the hex part. Hex part पढ़ेंगे, फिर आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हेक्स पार्ट केवल कुछ नहीं है, हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. केवल जो हमने 10 बिट लिखा 16 बिट एड्रेस में, है ना, उसको हमें कंबाइन कर देना है और हेक्स में रिप्रेजेंट करना है. तो हमें पता करना है रैम का स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन क्या है, रैम 1 का, रैम 2 का स्टार्टिंग एंडिंग लोकेशन क्या है, एंड सो ऑन. ठीक है, चलिए with this we end up this lecture. And tomorrow we'll start from this point and we'll start with the hex point and we'll extend our lecture to the next level. Okay? Section F में मैंने सारी PPT शेयर कर दिया है. A I will just see. I will just add myself in the. Can anyone add me in section A group? आप ऐड कर दो तो मैं PPT आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको देख सके और just you can went across the content. Okay? Ask your advisor to add me in section A group. Okay, with this we end up our lecture. Thank you.